बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो स्टडी टॉपिक है थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू पब्लिक पॉलिसी। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने पब्लिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस पढ़ा। नाउ हमारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू पब्लिक पॉलिसी की कौन सी थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं जो पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में और डेवलप करने में हमें फोकस करनी होती है। सो the learning objectives of today's lectures are explaining the meaning of a theory and a model. हमें first of all study करना है कि जी theory क्या होती है, model क्या होते हैं, and then identifying several theoretical approaches to public policy. हमने different theoretical approaches study करनी है, identify करनी है. Then analyze the strengths and weaknesses of each theory. हमने उनकी strengths और weaknesses भी देखनी है, each theory की strengths और weaknesses क्या है. Then examine the implication of each theory in policy making analysis. Then explain the importance of the identified theories. उनकी importance भी हमने देखनी है. So first of all हम देखते हैं कि what is theory. पहले हमें ये study करना है, ये learn करना है कि theory और theoretical approaches क्या होती हैं public policy के perspective में. So the theory is comprehensive, systematic, consistent, and reliable explanation and prediction of relationship among specific variables. So थ्योरी में क्या दे रही है? एक कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट और रिलायबल एक्सप्लेनेशन हमें दे रही है प्रेडिक्शन की किसी भी रिलेशनशिप के साथ, स्पेसिफिक वेरिएबल के साथ. सो थ्योरी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी. थ्योरी जो होती है वो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड इस मोस्ट और मस्ट ये है कि थ्योरी जो है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होनी चाहिए. इट कैन scientifically be proved होती है. most of my theories are scientifically proved. and like डाय ने 1995 में कहा था कि जी different theoretical approaches और मॉडल जो हैं इंट्रोड्यूस किए थे उसने पब्लिक पॉलिसी में and the study में. The Dye in 1995 said that certain theoretical approaches and models have been introduced in studying public policy. उनके different scientists जो हैं वो जब स्टडी करते हैं किसी भी पब्लिक इशू पे, पॉलिसी इशू पे, और जब उसके रिजल्ट्स शो करते हैं, रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं, तो एक थ्योरी की फॉर्म में वो सब्जेक्ट एरिया में डेवलप होता है, अराइज होता है. इसी तरह डाय ने भी डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो प्रेजेंट की हैं पब्लिक पॉलिसी में. As with the definition, there are no comprehensive theories on policy making and analysis. इसमें policy analysis और उसमें policy making में theories नहीं है. Different है. Distinguished scholars have remarked that policies are jelly-like in nature. ये jelly-like होती है nature में and must be thought of as a essentials. So furtherance, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्हें 1987 में रिमार्क दिए हैं कि जी all public policies are future oriented and aimed at the general promotional of social welfare. ये social welfare पे ज़्यादा function कर रही हैं. So there are different theories like institutional theory, जिसे institutionalism भी कहा जाता है. लेकिन जो most important theory है public policy एरिया में वो है रैशनल थ्योरी, रैशनलिज्म. इंक्रीमेंटल थ्योरी को हम इंक्रीमेंटलिज्म भी कहते हैं. मिक्स स्कैनिंग, प्रोसेस थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लीड थ्योरी, गेम थ्योरी एंड पब्लिक चॉइस थ्योरी. ये हमारे पास जो थ्योरीज हैं ये मोस्टली अप्लाई होती हैं पब्लिक पॉलिसी में, जिसको वन बाय वन हम डिस्क्राइब भी करती जाऊंगी. हमने लर्न करना है. सबसे पहले हम आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल थ्योरी पे. What is institutional theory? Institutional theory simply this is determined by government institutions which give policy legitimacy. कि policy legitimacy इस policy को कौन legitimacy देगा? Government universally applies policy to all citizens of society and monopolize the use of motion applied policy. पहली बात है गवर्नमेंट होती है वो अप्लाई करती है अपनी पॉलिसी ऑल सिटीजन्स पे. So the legislature, executive and judicial branches of government are example of institutions that give the reliable and legislative focus to the our specific policy. Institutional theory जो है वो हमें उन institutions के हिसाब से बता रही है कौन सी institutions हैं
जो इस पॉलिसी को लेजिटिमेट करेंगे, यानी जो लॉ के लिए यानी कानूनी हैसियत जो पॉलिसी को देती है वो कौन सी इंस्टीट्यूशंस ने देनी है। Like considers policy as an institutional output, institutions refer to government institutions. Government institutions have long been a central focus of political science. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो है वो सेंटर होता है, पॉलिटिकल जो है वो सेंटर है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हमारी गवर्नमेंट बनती है पॉलिटिकली सेटअप है। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सच एज द स्टेट, म्युनिसिपैलिटीज, पब्लिक पॉलिसीज, अथॉरिटी डिटरमाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड बाय दीस इंस्टीट्यूशंस। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस वही एरिया है जहाँ पे स्पेसिफिक हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाता है। तो पब्लिक पॉलिसी जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस से हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की एक प्रोडक्ट की सूरत में हमें मिलती है। और इंस्टीट्यूशनल थ्योरी अराइज ही उन इंस्टीट्यूशन से होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज क्लोज बिकॉज अ पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बिकम अ पब्लिक पॉलिसी until it is adopted, implemented and enforced by some government institutions. So इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ये कह रही है कि जी पब्लिक पॉलिसी तब अराइज होगी जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो उसे लेजिटिमेट सूरत में लाती है यानी कानूनी हैसियत देती है, तब तक एक पॉलिसी नहीं बन सकती। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी कह रही है कि पॉलिसी इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से राइज होती है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी। So government institutions give public policy legitimacy, legal obligation that command loyalty of citizens, universality. Only government policies extend to all people in the society and question force the government can legitimately violate of public policy. सारी बातें इंस्टीट्यूशंस ही हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो उसे लेजिटिमेट भी करती हैं, ऑब्लिगेशंस भी देती हैं, सिटीजन्स पे अप्लाई भी करती हैं, और अगर कोई नहीं उसको वायलेट कर रहा है तो उसे पनिश भी करती हैं। So it is precisely this ability of government to command the loyalty of its citizens, to enact policies governing the whole society, and to monopolize the legitimate use of force that encourage individuals and groups to work for enactment of their preference into policy. इसके बहुत जरूरी है कि जी वो अपने जो भी उससे रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जिन्होंने काम कर जिनके लिए एनफोर्समेंट आ रही है इस पॉलिसी में, तो उन सबको वो इंक्लूड करके इंडिविजुअल्स को इनकरेज करें ग्रुप वर्क के लिए, ताकि वो उस पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करें। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी को मैं सम अप कर देती हूँ 2 लाइन्स के। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी स्पेसिफिक सेज दैट कि हमारी पॉलिसी तब तक नहीं बन सकती है, अप्लाई नहीं हो सकती है, लेजिटिमेट नहीं हो सकती है, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती जब तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उसमें पार्ट रोल प्ले ना करें। सो government institutions are the major factors which take part in the development of any public policy, their legitimacy, their enforcement, and in the end उसके lawful ways में या अगर कोई उसे apply नहीं करा तो उसकी prison में भी रोल प्ले करती है। तो second theory हमारे पास आ रही है rational theory। rational theory जो है ये हांगकांग ने दी है। वो कह रहे हैं जी रैशनल कॉम्प्रिहेंशन मॉडल हैज इट्स रूट्स इन द रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग एंड अप्लाइज दैट पॉलिसी मेकर्स हैव अ फुल रेंज ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। रैशनल थ्योरी इज वन दैट कैन अचीव मैक्सिमम सोशल गेन बेनिफिट। गवर्नमेंट शुड चूज पॉलिसीज resulting in gains to society that exceed cost by greatest amount। रैशनल हमें बता रही है कि जी हमने अपनी जितनी भी चॉइसेस हैं, किसी भी पॉलिसी हम बना रहे हैं कि जी हमने ये स्टेप लेना है। पॉलिसी हमने स्टार्ट में ऐलान किया था जी, पॉलिसी हम कहते उसे हैं कि जब हम अपनी कोई माइंड की या हमारी जो विजन की जा रही है थ्योरी उसको हम अप्लाई करें। तो हम रैशनल चॉइस थ्योरी में हम देख रहे हैं जी हमें हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होती है, तो हमने ऑप्टिमम लेवल पे अपनी सोसाइटी को जो है वो एक्सीड करके उसे फायदा देना है, उसे कॉस्ट कम भरनी पड़े और उसे उसका बेनिफिट ज्यादा मिले। So the concept of maximum social gains means no policy should be adopted if its cost exceed its benefit, and among policy alternatives, decision makers should choose the policy that
produce the greatest benefits over cost. So policy is rational when the difference between the values, यानी हमने rational देना है, हमें सबब बताना है कि जी हमने पॉलिसी क्यों ली है. Rational में लास्ट में हमने देखना होता है कि हमारी कास्ट से हमारा बेनिफिट ज्यादा हो. यदि हमारी सोसाइटी को अगर हम कास्ट पे जितनी भी उसे कास्ट पे करनी पड़ रही है तो उससे उसका फायदा ज्यादा हो. और रैशनल यानी हम रीजन दे रहे हैं कि किस रैशनल की वजह से. So it achieves and values it gets is positive and greater than any other policy alternatives. हम बता रहे हैं कि जी इसके अल्टरनेटिव पॉलिसीज हैं उससे हम सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉलिसी दे रहे हैं. रैशनलिज्म इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ ऑल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज sacrificed are achieved by public policy, not just those that can be higher in terms of money. रैशनल चॉइस में हमने वो सारे बताने सबब जो कास्ट हम पे कर रहे हैं, वैल्यूज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारी पब्लिक जो सेक्रीफाइस कर रही है नॉट जस्ट मनी के लिए बल्कि उनमें सारे हमारे सोशल वैल्यूज आ जाते हैं, हमारे एनवायरमेंटल वैल्यूज आ जाते हैं, हमारे रिलीजियस मॉरल्स आ जाते हैं. तो अब सब देखना है कि सेक्रीफाइस कम होना चाहिए और उसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए. In rationalism, to select a policy makers must be able to know all the society values, preferences, their relative weight, know all the policy alternatives available, know all the consequences of each policy alternatives, and calculate the ratio of benefits to cost for each policy. हमने जो है वो असेस करना है रेशियो हमारी पॉलिसी के बेनिफिट से देन के जो सोसाइटी की कास्ट पे कर रही है. So the process for making logically sound decision policy making in the public sector, although the model is also widely used in private corporation में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रैशनल थ्योरी का. ये हर्बर्ट सिमन जो फादर ऑफ रैशनल मॉडल है ये डिस्क्राइब करते हैं. जी रैशनैलिटी जो है स्टाइल ऑफ बिहेवियर है दैट इज appropriate to the achievement of a given goal. ये appropriate वे होता है किसी भी achievement किसी भी डिजायर्ड गोल को अचीव करने का within the limits imposed by given condition and constraints. जाहिर बात है हमारे पास लिमिट है कंस्ट्रेंट्स की, हमारे पास जो कंडीशन है वो लिमिटेड है. तो हमने यानी हमारी लिमिटेड जो रिसोर्सेज थी, हमारी जो स्पेसिफिक कंडीशन थी उसमें हमने फायदा लेना है, यानी रैशनल के साथ फायदा लेना है कि जी हमने कौन सा रैशनल थे, कौन सी बात थी जिसकी वजह से हमने स्टेप उठाया है, यदि हमें फायदा देना है ऑल द सराउंडिंग्स को देख के हमने कोई ऐसा स्टेप लेना है. दिस आर द सेकंड मोस्ट famous theory or theoretical framework in the public policy. Now we are going in the third. This is garbage can model. ये मत जो है क्रिटिक टू दी रैशनल मॉडल, ये उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए इस पे क्रिटिक डालने के लिए मॉडल ये डेवलप हुआ है. ये कह रहा है कि जी ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट फंक्शन एज कंप्यूटर्स इन सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कंप्यूटर नहीं होती कि वो प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सॉल्व करने में ऑप्टिमाइज करें. सो दिस थ्योरी एडवोकेट दैट ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन लाइक गार्बेज cans into which a mix of problems and possible solutions are poured with the precise mix determine the decision outcome. ये कहना जी वो mixed solution में जो है वो mixed problems में mixed solution को देख के उसमें से थोड़ी सी वो देखते हैं कि जी कहाँ पे हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है. ये मॉडल जो है ये समझे उसकी क्रिटिकली उसको एनालाइज करने के लिए डेवलप हुआ है गार्बेज कैन मॉडल कि जी पॉलिसी जो है वो हमेशा बेनिफिट नहीं देती पर थोड़ी सी डेवलपमेंट के लिए हमने नुकसान को घटाया और उसमें से थोड़ा सा फायदा लिया. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द थर्ड इंक्रीमेंटल मॉडल. जो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल गार्ड थ्योरी को आप देख के ही वो समझ सकते हैं कि जी यहाँ पे कोई नई पॉलिसी नहीं आ रही. अंडर दिस मॉडल पॉलिसी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस पॉलिसी विद minimum changes. Existing programs, policies, and expenditures are considered as a base. Policymakers accept the legitimacy of previous policies because of uncertainty about the consequences of new policies. इसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल थ्योरी को आप वर्ड से समझ सकते हैं कि जी हमने प्रीवियस पॉलिसीज में अगर थोड़ी बहुत फ्लॉ देखी हम उसको चेंज करके उसको आगे
कंटिन्यू कर दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, ये एक मिक्स स्कैनिंग का भी वर्ड कॉमनली यूज होता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इंक्रीमेंटल थ्योरी। ये दोनों की कॉम्बिनेशन है कि यूजेस ऑफ दिस थ्योरी इंटीग्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल, like first by reviewing the overall policy and second by concentrating on specific need, policy result or policy impact. ये जो मिक्स स्कैनिंग है, यानी हमने एक ही पॉलिसी के दो पहलू देख लिए कि हम जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें रैशनल देख रहे हैं और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, मॉडल्स को अप्लाई कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी इंक्रीमेंट उसमें ला के हम उसी को कंटिन्यू करके जा रहे हैं। मिक्स स्कैनिंग कर रहे हैं इन बोथ लाइंस। फिफ्थ इज प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल क्या कह रहा है जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड डिमांड फॉर गवर्नमेंट एक्शन। प्रोसेस मॉडल ने स्पेसिफिक क्या किया जी, हमारे प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन की और उसमें आइडेंटिफाई किया कि गवर्नमेंट ने कौन से एक्शन जो है गवर्नमेंट के डिमांडेड है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी प्रपोज्ड बाय वेरियस पार्टीज, पॉलिसी लेजिस्लेशन, सिलेक्शन एंड एंगेजमेंट ऑफ पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चोजन पॉलिसी, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी, ये सारा प्रोसेस मॉडल है। ये हमारी पॉलिसी जो है ये प्रोसेस मॉडल है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। 6 इज ग्रुप मॉडल। जो हमने एग्जिस्टिंग मॉडल्स देखे थे, इंस्टीट्यूशनल मॉडल देखा हमने, रैशनल मॉडल देखा, इंक्रीमेंटल देखा, दिस इज अ ग्रुप मॉडल। ग्रुप मॉडल में भी आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मेन एजेंट ऑफ पॉलिसी चेंज इज द इनिशिएटिव बाय द इंटरेस्ट ग्रुप। इसमें बात आ रही है इंटरेस्ट ग्रुप्स की। They pressure and interact with the policy makers on preferences and self-interest. Thus, the role of the political system is to establish and enforce. जाहिर बात है कंप्राइज कर रहा है इसमें इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो सारे उसमें इफेक्ट कर रहे हैं। 7 हमारे पास है एलीट मॉडल, द मास। एलीट वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption that a small elite group, usually government, is solely responsible for policy decision. So the elite group govern and inform public. अब जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं वो है elite और वो गवर्न कर रहे हैं ill informed public को। Public policies are viewed as the preferences and values of government elite. Policies flow downward from leads। सही बात है, वो डाउनवर्ड काम कर रही है, पॉलिसी हमारी आ रही है ऊपर से, बना भी लीड रहे लेकिन बना वो पब्लिक के लिए रहे। तो जी लीड मॉडल बनानी मास के लिए, बनानी लीड है। एट्थ हमारे पास गेम थ्योरी। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। It is a study of rational decision in situation where 2 or more participants have choices to make. The outcome depends on the choice made by each. गेम थ्योरी में हमने देखना है कि जी हमने डिटेक्ट निकालना है, डिडक्ट करना है हमने मॉडल को कि कौन सा मॉडल हमारे पास ज्यादा सक्सेसफुल आ रहा है। It does not describe how people actually make decision, but rather how they should go about making decisions in competitive situation if they are rational. गेम थ्योरी में हमें पहले से स्टडी करना पड़ता है कि कौन से मॉडल हमारे सक्सेसफुल जा रहे हैं, कौन से को अगर हम अप्लाई करें तो वो सक्सेसफुल जाएगा। सो दिस इज द 9th हमारे पास आ रही है पब्लिक चॉइस। पब्लिक चॉइस हमारे पास आ जाते हैं कलेक्टिव डिफरेंट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए। दिस थ्योरी रेफर्स टू पॉलिसी एज अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स। सेल्फ इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, उनमें हमने चॉइस देखनी है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स लाइक कम टुगेदर इन पॉलिटिक्स फॉर देयर own mutual benefits and by agreement contract among themselves they can enhance their own well-being. Therefore people pursue their self-interest in politics, but even with the selfish motives they can mutually benefit through collective decision making. पब्लिक चॉइस आप देख सकते हैं कि जी हमारे वो डिसीजन हो रहे हैं जो इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए उठा रहे हैं, यानी पब्लिक जो बना रही है पॉलिसीज उन्होंने अपना क्या इंटरेस्ट उसमें देखा था। ये पॉलिसी जो है उनको कौन सी, यानी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ये गवर्नमेंट जो है ये स्पेसिफिक किसी एक एरिया को, या लाइक हम कहते हैं जी दिस गवर्नमेंट इज मोस्ट रेलेवेंट एंड
beneficial for business, and this is for agriculture. तो ये public choice है, ये वो collective जो person है वो उसी को support कर रहे हैं. Now public choice में हमने ये मॉडल जो है, this model assumes that all political actors, voters, taxpayers, legislature, bureaucrats, political parties seek to maximize their personal benefits in politics as a marketplace. वो पॉलिटिक्स को मार्केट प्लेस के तौर पे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इंडिविजुअल कम टुगेदर इन पॉलिटिक्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट जस्ट एज दे कम टुगेदर इन मार्केट प्लेस. वो जिस तरह मार्केट में आते हैं वैसे ही वो गवर्नमेंट में आते हैं ताकि वो अपनी चॉइस के, अपनी बेनिफिट के डिसीजन ले सकें. हम कह रहे हैं जी क्यों, हम इन दी एंड हम आ जाते हैं कि ये क्यों जरूरी है, क्यों मॉडल स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है. व्हाई दे क्रिएट ऑर्डर एंड सिंप्लीफाई रियलिटी. क्योंकि ये जो है वो एक तो ऑर्डर और रियलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं. आइडेंटिफाई व्हाट इज सिग्निफिकेंट, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लिए जरूरी कौन सा है. देन कैन बी कॉन्ग्रुएंट विद रियलिटी, वो रियलिटी के साथ भी हो सकते हैं. कैन प्रोवाइड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, वो हमें जिस तरह हमने देखा जी पब्लिक चॉइस थ्योरी में कि वो एक हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल भी हो जाता है. डायरेक्ट इंक्वायरी एंड रिसर्च, इसमें इंक्वायरी एंड रिसर्च भी हो सकती है. सो ये हमें एक्सप्लेनेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है. In the end, I want to sum up these lines like models are not competitive. Competitive model नहीं है. Anyone of can be judged as a best. कोई भी मतलब जज हो सकता है and cannot be judged as a best. कोई best नहीं भी हो सकता. Each one provides a separate focus and each can help understand different things about the public policy. Each model जो है वो different lines से public policy को define कर रहा है. Most policies are the combination of all model mentioned. जो मोस्ट हमारे पास पॉलिसीज होती है जो नेशनल लेवल पे बनती हैं, तो वो इन सारे जो हमारे पास मॉडल थे उन सबको साथ लेके ही जो है वो प्रपोज होती है. यानी उनमें जाहिर बात है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी भी होती है. इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने बनाना है तो वो उन सबके फायदे को भी देख रही है. उसमें इंक्रीमेंटल भी है, इनकी प्रीवियस पॉलिसी पूरी गलत नहीं होती, उसमें पॉइंट्स ला रही है. उसके बाद वो पब्लिक चॉइस भी ला रही है. जो ग्रुप बना रहा है वो अपने वोटर्स का इंटरेस्ट भी देख रहा है, अपनी सोसाइटी का इंटरेस्ट भी देख रहा है. दैन रैशनल थ्योरी है, क्योंकि रैशनल में हमें देखना है कि हमें नुकसान तो नहीं देना. तो ये सारी चीजें मिला के एक पॉलिसी बनती है. बट these are the areas, we can say that these are the theoretical perspectives जो हमें पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं कि इन एरियाज को, इन लाइंस को हमें फोकस में लाना है. थैंक यू सो मच. इस लेक्चर में आपके लिए जो स्टडिंग एरिया है, होमवर्क ये है कि आपने कोई भी पॉलिसी जो अभी रिसेंटली यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में अप्रूव हुई हो, उस पॉलिसी का कोई भी एक पर्सपेक्टिव देखना है कि उस पॉलिसी में कौन सा पर्सपेक्टिव था. आइदर कोई बेनिफिट था, आइदर उसमें कोई पब्लिक चॉइस नहीं, उस गवर्नमेंट ने अपना फायदा देखा था, या इंस्टीट्यूशनल मॉडल हम कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन ने खुद को फायदा देने के लिए किया था. रैशनल मॉडल देख सकते हैं. तो ये सारे इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट, किसी एक पॉलिसी में एक पॉइंट देखना है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.